यूरेनियम अफजोदगी और ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात को नुकसान पहुंचने के हवाले से सदर ट्रंप और ईरानी क़यादत के मुतज़ाद बयानात सामने आ रहे हैं। दूसरी तरफ ईरान में इसराइली हमलों में शहीद होने वाले अहम अस्करी क़यादत और जौहरी साइंसदानों की सरकारी सतह पर इज्तिमाई नमाज जनाजा अदा कर दी गई। तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर होने वाली इस तकरीब में सियाह लिबास पहने हज़ारों ईरानी शहरियों ने शिरकत की। इस दौरान शुरका ईरानी परचम लहरा रहे थे और शहदा की तस्वीर उठाए हुए अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे लगा रहे थे। CNN के रिपोर्टर ने तेहरान में मजमे के दरमियान से बताया कि ईरानी कितनी बड़ी तादाद में इस इज्तिमाई जनाजे में शरीक हैं और उनके इसराइल और अमेरिका से मुताल्लिक क्या जज्बात हैं और वो क्या नारे लगा रहे हैं। This is a gigantic procession right through the heart of Tehran. There are thousands of people here who are trying to touch the caskets. They're trying to give the folks who are on the caskets items to rub on the caskets. Now, there are 60 coffins in total that are going through this city. Among them, Iran's top military leadership. You have the head of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Hossein Salami, the head of Iran's missile program, Ali Hajizadeh, many others as well, including nuclear scientists, but also civilians. There's also women and children whose caskets are in this procession right now. People here say that they are honored to pay their final respects to those who were killed, but they're also vowing to continue to stand up to both the U.S. and Israel. Death to America, death to Israel, she says. God willing, they'll be destroyed soon. My message to Trump is, God willing, you will die, he says, because you attacked Iran. And be sure the people will take revenge for the blood of these martyrs soon with the obliteration of Trump, Israel, and the United States. All this comes as Iran's supreme leader, Ayatollah Ali Khamenei, has lashed out at both the United States and Israel, saying he believes that Iran's military campaign against the Israelis was victorious and that also the U.S. had gained nothing from bombing Iran's nuclear installations. At the same time, the Iranians are vowing to be defiant, saying that their nuclear program will continue. Of course, enrichment will continue as well. इस तरह BBC ने भी तेहरान में होने वाले इस अहम इज्तिमा के मनाज़िर दिखाए हैं जिनमें ईरानी शहरी शहीद होने वाले रहनुमाओं से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए और इसराइल और अमेरिका के खिलाफ नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। Death to America, death to Israel, the old slogans of Iran's revolution. But today, the heart of Tehran pulses with even greater anger, deeper grief. Israel killed the soldiers who commanded Iranian forces, the scientists who built their nuclear program, and their family members too. These foot soldiers of the revolution are vowing revenge. We will destroy Israel and we will just we will make war that there is no Israel. But Israel says if you try to destroy it, it will destroy you. It's just a joke for us because इस सारी सूरत हाल में जहां नेतन्याहू ईरान के साथ जंग के बाद की सूरत हाल से इसराइल के लिए नए मौक़े पैदा होने की बात कर रहे हैं, वहीं ईरान के साथ जंग के नताइज पर सवालात अभी भी अपनी जगह बरकरार हैं। उनमें से सबसे अहम सवाल ईरान का तकरीबन 60% तक अफजोदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा है, जो कि तकरीबन 400 किलोग्राम तक है। ईरान का दावा है कि अमरीकी हमलों से उनके न्यूक्लियर तंसीबात को नुकसान पहुँचा है, मगर इतना नहीं जितना अमरीकी सदर ट्रंप दावा कर रहे हैं। जबकि ये रिपोर्ट्स भी सामने आई कि ईरान ने हमलों से पहले ही अपना अफजोदा यूरेनियम मुंतकिल कर दिया था, जबकि अमरीकी सदर ट्रंप मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि अमरीकी हमलों के बाद ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं। इसी तरह कल फॉक्स न्यूज़ के एक इंटरव्यू में अमरीकी सदर ट्रंप से ईरान की जानिब से यूरेनियम मुंतकिल करने का सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि किसी ने यूरेनियम मुंतकिल नहीं किया और उन्होंने एक बार फिर दावा कर दिया कि ईरान की न्यूक्लियर तंसीबात मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। I saw reports that there were 400 kilograms, 800 pounds that they moved, but I wonder if it's traceable. I mean, if they were to have moved, they didn't move anything. You know, they moved themselves. They were all trying to live. They didn't move anything. They didn't think it was going to be actually doable what we did, and what we did was amazing. And they, you know, we went. There were energy commissions that went there. Now, it's just thousands of tons of rock. In that room right now, that room, the whole place was just destroyed, and the other two also. इसके अलावा सदर ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि वो ईरान को यूरेनियम अफजोदगी की इजाज़त कभी नहीं देंगे, मगर ईरान अमेरिका और इसराइल के हमलों के बावजूद यूरेनियम की अफजोदगी के हक से दस्तबरदार नहीं हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर अमीर सईद इरावानी ने CBS न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान का जौहरी अफजोदगी का अमल कभी नहीं रुकेगा, अफजोदगी हमारा हक है
और हम इस हक को इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्या आप हमें वजाहत से बता सकते हैं कि क्या ईरान अपनी सरजमीन पर दोबारा यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम शुरू करेगा? आपको पता है कि ईरान एनपीटी का एक जिम्मेदार रुकन है और इस मुआहदे के तहत हमारे मुश्तरका हुकूक हैं। एनपीटी में तय किया गया है कि हमारे 2 हुकूक हैं। पहला ये कि हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर सकते हैं, हम यूरेनियम की पैदावार कर सकते हैं और इसे पुरअमन एनर्जी के मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा हक ये है कि हमें कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा और हमारे प्रोग्राम के लिए टेक्निकल ताउन किया जाएगा। और जवाब में एजेंसी को यह हक होगा कि उसे हमारे प्रोग्राम तक रसाई हासिल होगी और हमारा प्रोग्राम सिर्फ पुरअमन मकासद के लिए रहेगा। तो यूरेनियम की इनरिचमेंट हमारा हक है और हम इस हक को हासिल करना चाहते हैं। यानी आपका पूरा प्लान है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट जारी रखेंगे? मेरा ख्याल है कि यूरेनियम इनरिचमेंट कभी रुकेगी ही नहीं।